make a short film, which will be produced by Shiksha Entertainment. Like Gutter Muka bhi, we wrote a short film, just a short film, और it's going to lead to a two-season show. Writer तो writer है ना, writer तो कुछ भी लिखेगा. Cinema is more than just dancing around trees. पहले जो फिल्में बनती थी, राहुल studying England में या abroad में love story and all. An article in Chandigarh Times that Anurag Kashyap he writes on that blog. जो सुना है मस्तराम के बारे में, पढ़ा है मस्तराम के बारे में. Have you ever thought कि उसकी बायोपिक होगी तो कैसी होगी? Unfiltered, unscripted. Who I am, this is who I am. That's my story. हाय एवरीवन, आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ जो आर्टिस्ट आने वाले हैं, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड. ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट टुडे. सो वी आर गोइंग टू कॉल वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ आवर करंट जनरेशन. ये एक ऐसे राइटर है जो बहुत ही मस्तराम है, बट इनकी राइटिंग बहुत गैंगस्टर वाली भी है. यहाँ 2 मिनट में और अकेली बिल्कुल नहीं बैठूंगी और अपने साथ गुफ्तगू करने के लिए लेट्स कॉल गुंजन सक्सेना. हाय गुंजन. हेलो. वेलकम टू द शो. Thank How you. are you feeling? Good, बढ़िया. First of all, I want to congratulate you on the success of Gutargu season 2. I'm Thank you. sure वो सबने देखा है. I really loved watching it. And since the season 1, season 2, I've been following that. Thank you so much. So, how do you feel, having this huge success with season 1 followed by season 2? क्योंकि usually थोड़ा होता है कि season 2 आते people lose interest or maybe the storyline was different, but it achieved the same success as the season 1 went. That I don't know, but for a writer, Yeah. getting project approved by a producer and getting money from the producer is enough. Then success and failure is later aspect. Right. जो writer का उतना लेना देना नहीं होता. If it succeed, you are getting more work, that which means कि आपका काम अच्छा है and your success मिल गया आपको. बाकी तो कितना व्यूज आ रहा है, कितने लोगों ने देखा, कितना वायरल हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच आई डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू. मेरा काम राइटिंग करने के बाद खत्म हो जाता है एंड देन इट्स अप टू द अदर पीपल टू सी. सो गुंजन, स्टार्टिंग अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो राइटिंग एक आप कर रहे हो, इट्स बीन ऑलमोस्ट मे बी आई थिंक अ डिकेड और मोर देन दैट, राइट? तो इफ पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं फॉर गुटरगू सीजन 1 and 2, तो इसका जो आइडिया है आपको ये कैसे आया था और वर यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट? So it's a very interesting story. काफी फिल्मी कहानी है. Before pandemic, the director जो है साकिब, he's a friend. He came up to me. He said कि we have to make a short film, which will be produced by Shiksha Entertainment, which will be for another app platform. So I said okay. We wrote the film, and producers at Shiksha, they liked it. But then pandemic happened and everything got stalled. Okay. So we thought कि अभी तो बनेगा नहीं बनेगा, we were not sure. But by the time pandemic ended, Amazon Mini came into India. Right. So then we got to know कि it will be made for Amazon Mini, the short film. Okay. And it got made. It's called गुप्त ज्ञान के नाम से. So वो film आया and it became थोड़ा success. People liked it. Amazon got good feedback. So then we pitched an idea. We said कि with the same characters, why not we create a show out of it? Young adult romance with some humor. So we pitched the idea. Shiksha liked the idea. They took it to Amazon, and they also gave a green lit to it. And then we started writing it. We wrote the first season and second season, and that's how it got made. So had it made for the other platform you're supposed to make, Correct. then maybe it would have ended with a short film only. But because it got made for Amazon Mini, and then that's how like the show came into being. Otherwise it would have been just a short film and things would have ended there. As you mentioned, Gunjan, about pitching. तो ये pitching के लिए obviously you mentioned director is your friend. Yeah.
and there are a lot of people who want to start, but ये जो pitching वाला scene है ना, how does this really work? Even for example getting an entry into Sikhya Entertainment, how do you went ahead with that and how can anybody understand कि यार वहाँ पे pitch करने के लिए कैसे जाना है? एक रूल माना जाता है, अनसेड रूल है फॉर फ्रेश राइटर्स, दैट यू अप्रोच एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ अ बिग डायरेक्टर. सो समवन हु इज लुकिंग टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म, you go to him, you pitch an idea to that person, because he's a newbie like you, he would listen to the idea with much more interest. He won't be having 10 scripts around him to choose from. So if he likes your idea, then he will take it to the producer, because most of the production houses, they look for a director writer combo sort of thing. They look for director with a script. So you take it to them, and then they will take the script to the producer. But it's my thing, like मेरे साथ ऐसा है अभी तो there are agencies representing writers who get you work. If you're a good writer, you approach agency, you get signed with them, because most of the production houses, especially like premium platforms which are there in India, whenever they create a show, they go to these agencies and they ask them if they have writers to work on the show. So that's how it is working. But this is one of the way you keep on writing, you keep on developing ideas, you keep on discussing those with people, and you never know like which one will take you where. So like Gutter Guka bhi, Guptiyan, when we wrote a short film, it was just a short film. We never knew how it's going to lead to a 2-season show. But it happened, so you never know what will work. So how was talking about Guneet Monga is somebody that everybody talks about her right now because of the Oscar Academy Award, all of that. So how was your personal experience when you met her? They are like fantastic producers. They never intervene. If they have faith in you, they let you do your thing, and they just there to support you. They never interfere or say like make it like that. They do hear a narration, they listen to the story what we have written, but mostly it's been a smooth ride. Like I would say like they are fantastic producers. Okay. And it's good because it is very important who is producing the show or film, whatever you're doing, because that name also matters a lot. That matters a lot. Had Gutagu be made with a new producer or unknown producer, शायद वो इतना success नहीं मिलता उसको, because Gutagu you get a certain credibility of working with the attached to it. That definitely happens. And if that producer is not interfering and supporting, then nothing like that. But I'm sure ऐसे काफी producers रहे भी होंगे, who maybe not interfere, maybe not the right word, but maybe creatively, there are a lot of people who have a lot of feedback to give. So how do you personally So honestly, take that? सबसे problematic producer वो होते हैं जो बोलते हैं सिर्फ सुन के कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ कुछ रहा, करो. is a very अब general वो इज अ statement. जेनरिक स्टेटमेंट ना. सो एज अ राइटर यू गेट कंफ्यूज के विच डायरेक्शन टू गो इन. सो लाइक मेरा अप्रोच क्या रहता है, आई गो विद डायरेक्टर इज माई ऑडियंस. सो जो भी डायरेक्टर है मेरा, वो मुझे बोलता है अगर उसको अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है, 2 लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो दैट मीन्स वी आर इन अ राइट डायरेक्शन. देन वी कैन टेक इट टू अदर पीपल. बट इफ यू डूइंग इट इन आइसोलेशन, बहुत सारे राइटर वो करते हैं कि खुद से लिखते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत ग्रेट लिखा, एंड दोस्तों को सुनाते हैं, दोस्त भी बोल देते हैं अच्छा है. अच्छा लिखा, हाँ. But that is not a right way. You need someone to give you an objective and a critical feedback on that. But is it necessary somebody from the industry, or like you mentioned, friends को सुनाया, अभी friends को मैं कुछ सुनाऊंगी, maybe they'll probably say कि हाँ बहुत अच्छा लिखा, but एक critical feedback. Yeah, that's very कितना important. है वो? But सबसे जरूरी ये भी है कि you got to be self-critical of your work. आपने जो लिखा, मतलब ये मैंने जयदीप साहनी who's a big writer, उनका फंडा सुना था कि वो लिखते हैं एक स्क्रिप्ट, फिर 6 महीने के लिए रख देते हैं, देन 6 महीने बाद फिर उसको पढ़ते हैं, देन ही जज इट ऑब्जेक्टिवली. So that's a good way to do it. But for me, like, because मैं 6 महीने I can't afford to keep a script away for 6 महीना and then come back to it. So better to go with a director, with someone who can give you critical feedback on that. Director is the best person because ultimately शो या फिल्म जो भी है वो डायरेक्टर का भी रहता है. तो डायरेक्टर इज समवन जिसका नाम उससे अटैच रहेगा. तो अगर वो अच्छा बनता है तो डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा है, बुरा बनता है तो डायरेक्टर को नुकसान सबसे ज़्यादा है. राइटर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका प्रोजेक्ट एक बार बन गया, बाहर आ गया,
तो राइटर का मोरलेस काम हो गया. राइटर ने मतलब ही प्रूव्ड कि हाँ, people believed in my writing, that they invested certain amount of money and put it out there for people to see. So now it is working or not working, that's a different thing. But for director it matters a lot. So अगर director आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा है कि अच्छा है, तो which means कि हाँ ठीक है, you are going in a right direction. But director को अगर डाउट है, उस पर नहीं convincing लग रहा, then you have to go back on the drawing board and decide again. work again. But I wanted to understand कि व्यंजन सक्सेना कौन है, ये कहाँ से आया है, स्कूलिंग कहाँ पे है, पढ़ाई कहाँ करी है, बॉम्बे में कैसे आया है. So let's start, with your journey. I'm born in Patiala, Punjab, and my dad was professor in REC Kurukshetra. He used to be REC, now it's NIT Kurukshetra. Okay. So I grown up in engineering campus. Everyone around me was becoming engineer, preparing to become an engineer, and I was no exception. My family wanted me to become an engineer, but उनको भी समझ आ गया कि इसके बस का नहीं है. मुझे आ गया था समझ कि हाँ भाई मेरे बस का नहीं है. So I thought कि I should do something else, and then I thought कि I'll do something which is easier to study, which I thought would be hotel management, but it turned out to be a nightmare because it is as tough as engineering, studying hotel management. So you did a bachelor's course in hotel management. Okay. But then like while doing it, I knew कि like उतना मतलब नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं है. But ठीक है अभी, because being from a middle class background, and especially when your parents are in academics, so they are very particular about you do a professional course, get a job, settle down. So I knew no other way. So I completed my college. I did my college from Chandigarh. Chandigarh, I did my college, got a job, started working. And then, but in college, one interesting thing happened was I came across this blog, जिसपे लोग लिखते थे. It's called Passion for Cinema. So that blog was, so how I got to know is I read an article in Chandigarh Times that Anurag Kashyap, who is writer of Satya, he writes on that blog. So तब तो लैपटॉप भी नहीं थे. I went to a cyber cafe and opened that Passion for Cinema. And that blog opened a new world to me, because on that blog there were many people who are now very successful in film industry, who are outsiders, who made the name? Neeraj Gewan is one who made Masan, Right. and then there's Somen Mishra who heading Dharma creative team. So all those people, there's Navjot Gulati who made many feature films. So those people, they were writing on that blog and writing about cinema, analyzing cinema, word cinema. So that opened a big gateway for me, because before that the cinema we were consuming was more of a typical commercial rom-coms which were being made at that time. So in like 2000-2010 period, the many interesting films also came out. Many new directors came. Anurag Kashyap made a film, and Imtiaz Ali, and Shimit Amin, Dibakar Banerjee, all those people came. So then you realize that cinema is more than just डांसिंग अराउंड ट्रीज. और उससे पहले जो फिल्में बनती थी, राहुल स्टडिंग इंग्लैंड में या अब्रॉड में, लव स्टोरी अब्रॉड, तो आप वो सिनेमा देख के आई ग्रू अप. But then new films started coming, different type of cinema started coming, and I realized that like these kind of films are also being made and can be made, and they can be interesting. So then I started reading that. I was like a continued reader of that blog. I stayed in touch. Working also at that time? Yeah, I was working. I completed my college, started working. I continued following that blog. And so उस blog पे I was in Noida. This is 2008-9. Okay. I was working in Noida, and so one gentleman called Hemant Gaba, he was working in US and he wanted to make a film. So indie film, तब जो term चलता था indie films, you put in your money and you create you take new actors and you make a film. So he posted on that blog saying, I'll be shooting a film in Delhi, and if anyone can help me with that, whatever help. So I contacted him,
आई सेड के सर आप मेरे को असिस्टेंट ले लो. ही आस्क्ड मी हाउ मच सैलरी आर यू गेटिंग. आई सेड इतना. ही सेड के भाई मैं तेरे को इतना आधा भी नहीं दे पाऊंगा और आई कांट पे यू एनीथिंग, सो बेटर डोंट क्विट योर जॉब बट स्टिल लाइक कम टू माई शूट, विल बी इन टच एंड वो सब. तो आई स्टार्ट मीटिंग हिम एंड तो वो मेरा पहला एक इंटरेक्शन हुआ कि हाउ सिनेमा इज बीइंग, हाउ टू मेक सिनेमा, फिल्म मेकिंग से. उससे पहले नेवर बीन ऑन फिल्म सेट, कभी कुछ देखा नहीं था, कुछ नहीं था. So I asked him कि how do I get into filmmaking? He said कि make a short film, write a short film first. तो मुझे आइडिया नहीं था शॉर्ट फिल्म क्या होता है. बट देन आई बॉट अ बुक, सत्यजीत रे का शॉर्ट स्टोरीज का बुक. वो मैंने खरीदा एंड वो मैंने पढ़ा. आई वॉज अ रीडर, लाइक आई यूज टू रीड बुक्स, बट शॉर्ट स्टोरी मैंने पहली बार पढ़ा एंड आई वाज माइंड ब्लोन. मतलब सत्यजीत रे शॉर्ट स्टोरी वाज अमेजिंग. नेटफ्लिक्स ऑल्सो मेड दिस थिंग एंथोलॉजी ऑफ रे शॉर्ट स्टोरीज. So they were amazing and I got the like idea how to short story can be written in 5-6 pages में आप लिख सकते हो. So I got some idea. I tried. Then the friends I made while working in Noida, they also helped me. Like they were also encouraging me. We tried shooting some short films in the flat we were staying. So that sort of thing. They were acting in it and वो सब रहा. So उसी में 2011. On the same Passion of Cinema blog, they put a post that there's a short film writing competition and it will be mentored by Anurag Kashyap and you send your short stories. And so I said कि ठीक है चलो देख लेता हूँ भेज के. तो I sent my short story and by chance it got selected. So I was like one of the top 10 in top 10 and so they called all those 10 people to Bombay. And what story, if you can tell us briefly, कि वो क्या? So it was about, it was kind of like खुद का लाइफ से लिया एक था इंसिडेंट था in which I lost my while studying in Chandigarh. I lost my bag in a roadways bus and उस बैग के अंदर मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट वगैरह थे. तो I had to collect that bag. For that I had to travel and I met a conductor, बस हरियाणा रोडवेज का कंडक्टर. Who had my bag? I was doubting, but he eventually gave me the bag. Okay. So ये भी ऐसे हुआ like one of those nights when I was chatting with my friend, work friend, and एक को मैंने ये वाला कहानी सुनाया. And he said कि ये तो अच्छा कहानी है, इस पे write a short film about it. And so I written a short film on that. और वो भेजा मैंने. Because वो मेरी खुद की लाइफ से भी इंस्पायर्ड था, हरियाणा की कहानी थी, ह्यूमर था. So it was easy for me when I narrated the story to Anurag. So he liked it. He said, "K, you have that vibe of a writer. You are a writer. So if you want to write, you come to Bombay." But you specifically chose writing. मतलब ऐसा नहीं था कि family में कोई writer है और नहीं ऐसा नहीं था. ऐसा कोई नहीं था. Writing interest lied. सबसे कम खर्चे में जो काम हो सकता है वो राइटिंग है. तो आई थॉट कि राइटिंग करना इजी है. मतलब इजी इन द सेंस कि मेरे को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था. जैसे वो पैशन ऑफ सिनेमा पे पढ़ के आपको एक्टिंग के अलावा एस्पेक्ट जो है डायरेक्शन वो सब तो उनमें आपका इंटरेस्ट हो जाता है. स्टोरी टेलिंग वो समथिंग which always like stories always excited me. As a kid, like when I saw Jurassic Park, I thought, why don't we make such cinema? Like, why do we always have villain, hero, heroine? Why not something different? Why not dinosaurs in our film? So that jump of thing, like maybe it came from there. So and again for via that blog only, I watched many films जो मैंने नहीं देखी थी वो मैंने देखी and I love them. So I've made few friends through that blog who are in Delhi, who are also like watching world cinema. So उससे काफ़ी कुछ मिला. एक और interesting aspect I should tell you, like in 2010 के around, all my work friends they got married. So I was the only one left in that rented. Then I moved to a PG accommodation. And I was thinking like लाइफ कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा. मतलब अभी शादी कर रहे हैं सेटल हो रहे हैं. मैं अब जॉब में मज़ा नहीं आ रहा. मैं कर क्या रहा हूँ मतलब लाइफ में हो क्या रहा है. होटल मैनेजमेंट जॉब दैट यू वर रिटेल जॉब वो वाला जॉब. तो आई वाज थिंकिंग कि मैं भाई हो क्या रहा है लाइफ में. एंड देन I met this guy who was in a bank.
वो उस पीजी में वो भी रहने आया था. And I was watching, I still remember in the night, I was watching Rocket Singh Salesman of the Year, which not many people have watched. But that fellow, he walked into my room asking for something, and he saw me watching the film, and he said कि अच्छा तू Rocket Singh मतलब मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है. Then we became friends, and he became someone with whom I used to bounce many ideas. He was also very encouraging. I met him like for the first time. I never met him before, and but we became friends. And he was someone with whom we bounced ideas. I think अच्छे friends होना बहुत जरूरी है. Yeah, बहुत जरूरी है. Clearly see like how your friends played such a major role. True. That's true. बट ऐसा कभी फैमिली ने ऐसा मना नहीं करा क्या कि यार होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, अच्छा जॉब है? मेरी फैमिली अच्छा जॉब, मतलब माय फैमिली काइंड ऑफ, बिकॉज आई चेंज मेनी जॉब. एक किया 6 महीने किया, छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा था. तो फैमिली वाले के यू डू समथिंग लाइक डू MBA और समथिंग, बट एटलीस्ट डू समथिंग. अगर फिल्में बनानी है तो मतलब मेरी फैमिली को कभी मैंने ऐसा कन्फ्रंट भी नहीं किया था कि मुझे सिनेमा बनाना है. मतलब अब आप कुरुक्षेत्र के हो, फैमिली को भी कहाँ लगता है कि हमारा लड़का राइटर बन जाएगा या कुछ बनेगा. तो फैमिली वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब गो टू FTI है. माय डैड सेड के FTI चले जाओ, वहाँ जाके कर लो, अगर ये करना है पढ़ लो, वहाँ जाके करो. बट एटलीस्ट बट इतना होपफुल कोई भी नहीं था, मैं खुद भी नहीं था इतना होपफुल कि कुछ ऐसा हो जाएगा. इट सडनली हैपेंड लाइक ऑल, आई थिंक डेस्टिनी होता है. तो वही था, बाई चांस माई स्टोरी गॉट सिलेक्टेड. आई मेट अनुराग कश्यप लाइक समवन बिकॉज ऑफ whom I started reading that blog, because news piece which was there. हाँ उनको बताया मैंने, उनको बताई. सो वो सब रहा. So that's how my Bombay journey started. I came to Bombay in 11 and 15 अगस्त को my dad said कि 15 अगस्त को चला जा, मैं तुम्हारा टिकट कराता हूँ, आज़ादी it's your freedom. तो I came to Bombay. Then Bombay में अलग जर्नी स्टार्ट हुआ. एक अलग लर्निंग थी बॉम्बे में आके. फर्स्ट डे बॉम्बे कैसे ट्रेन से आए थे? या आई केम बाय ट्रेन. यस आई केम बाय ट्रेन. पूरा 24 घंटे पटियाला से लगा के यहाँ. या बट हाउ डू यू रिमेंबर दैट डे? या सो मेरे लिए सब बड़ा शौक क्या था कि बैंड्रा पे मेरे लिए शौक क्या था कि बिफोर कमिंग टू बॉम्बे, तो द सेम गाय जो फिल्म बना रहे थे दिल्ली में, हेमंत, तो उन्होंने वो ही यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे. वो ही स्टेड फॉर सम टाइम इन बॉम्बे इन मलाड. तो ही सेड के आई वाज स्टेइंग इन मलाड विद अदर पीपल, सो यू कैन आई हैव नॉट टेकन माय डिपॉजिट बैक, यू गो एंड यू स्टे इंस्टेड ऑफ मी, यू स्टे एट दैट प्लेस. तो मैं बॉम्बे, लेकिन मेरे दिल्ली का तो जो कल्चर था कि कोई आ रहा है तो बैग लेके आया सीधे और सेटल हो गया घर में. I went to their place and I landed in Bandra. मैंने उनको कॉल किया. I went to see them. They said you can't shift right away. You got to meet the house owner and वो सब रहेगा, तो it'll take 4-5 दिन. तो I said मैं कहाँ जाऊँगा भाई. तो then I called up नीरज, नीरज गेवान. He was Anurag assistant and I met him in the same workshop. So I said कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है. तो he was very kind. He said कि you come to my place, stay with me. And but he said कि you try to find, because बॉम्बे में घर छोटे होते हैं. So he said then I started looking. I got a PG. वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया. PG में भी था, वो 2 BHK था PG, converted to PG. और आई वॉज द फर्स्ट वन हु वाज स्टेइंग देयर. तो पूरे 2 BHK में अकेला मैं ही रहता था. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि बॉम्बे में इतना जगह किसी को मिलता नहीं है. वही. एंड मैं पहले ही वाला आया हूँ और मैं 2 BHK में रह रहा हूँ. बट 2 BHK में 4 बेड हॉल में पड़े हुए थे, 3 बेड अंदर थे, जैसे PG वो होते हैं यहाँ पे. तो उस टाइप का सेटअप था. एंड सो देन आई कंटिन्यूड स्टेइंग देयर. वहाँ पे फिर दिस इज अंधेरी वेस्ट, बसोवा. सो वहाँ पे देन आई मेट मैनी पीपल हु केम टू स्टे इन, बिकॉज वहाँ तो सब इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाले ही लोग थे. सो वी मेड अ गुड सर्कल. वहाँ पे वी यूज्ड टू थिंक, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, वो सब चलता था. तो पहला प्रोजेक्ट इसके बाद मतलब कब यू स्टार्टेड राइटिंग समथिंग? मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे हाउ थिंग्स वर्क इन बॉम्बे. सो अनुराग कॉल्ड मी, सो आई वेंट टू हिज ऑफिस
And so they were also supposed, they were producing my short film also, Which got selected. which got selected. I was directing it. Okay. और मैंने कभी डायरेक्शन रखी, मुझे कुछ आता नहीं था. वो अनुराग also knew के अनुराग be like कि हाँ ठीक है you do, but he very clearly said to me कि don't think about directing a film unless you write 3-4 अच्छी फिल्में जब तक ना लिख लो, Correct. अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम ना कर लो, don't think about direction. तो I said ठीक है. So in his office only I met Akhilesh, who was one of the writers in Yango Wasipur, and we became friends and we started jamming. So he said कि तूने सुना है मस्तराम के बारे में, पढ़ा है मस्तराम क्या कभी? तो मैं पढ़ा नहीं था, but I knew कि it's a erotica fiction writer. So he said कि have you ever thought कि उसकी बायोपिक होगी तो कैसी होगी? So and I like the idea. उसी टाइम में मैंने रस्किन बॉन्ड की बुक पढ़ी थी, डेली नॉट फार. दैट वाज लाइक नॉट सेम, बट उसमें भी एक कहानी थी, एक राइटर है जो want to go to Delhi to write a novel and वो छोटे शहर में रहता है. तो that germ of idea we picked up कि there's a writer who lives in hills. He wants to become a writer, but कोई लिखवा नहीं, मतलब उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, तो he was writing कुंजियाँ जो होती हैं, हिंदी की कुंजी जो स्कूल में पढ़ते हैं, that sort of thing he's writing. And then he goes with a novel and author says कि this is very bland, write something मसालेदार. तो he figure out कि what is मसालेदार, and then he come up with this erotic story and they publish it and it become a success. But he says कि भाई मैं अपना नाम नहीं दूंगा इसमें. So they use a pseudonym and they call it Mastaram. So that idea he liked the idea. We wrote it like in 2 हफ्ते के टाइम में we finished first draft of the script. Like पूरा film you wrote it in 2 weeks. हाँ, मतलब 2 हफ्ते में अपने डेली बैठ के हमने लिखा. Okay. एंड 2-3 महीने बाद ही सेड टू मी कि पिक्चर बन रहा है. तो मेरे लिए तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि मैं बॉम्बे Within 1 year of your shifting. Within 6 months. Within 6. Wow. Within 6. तो within 6 months this happened. He said कि फिल्म बन रहा है and I was very happy. So अजय राय, जार पिक्चर्स, which is a big name now. So उनका पहला फिल्म था मस्तराम, तो वो बना, फिल्म बना. बट मुझे फिर अगेन एक लर्निंग ये रही कि भाई पिक्चर बनाना एक है, उसको रिलीज करना इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. दैट टेक्स टाइम. सो मुझे तो तब ये लगता था कि फिल्म बन रही है तो रिलीज हो जाएगी, 6 महीने बाद रिलीज कर देंगे, लिख दिया, बन गई, शूट हो गई, अब तो बनी जाएगी. सो बट वो एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई इतना आसान नहीं होता, वो टाइम लगता है उसमें. तो फिर भी देन इन द मीन टाइम आई मेट जीशान कादरी, हु वाज अगेन वन ऑफ द राइटर्स इन गैंग्स ऑफ वासेपुर. ही वाज मेकिंग फर्स्ट फिल्म मेरठिया गैंगस्टर. So he asked me if I want to be part of that. So I obviously said yes. Okay, so that's how your second movie. Second movie happened. Then we went to Meerut. We did research and all that. But तब तक जीशान एक ड्राफ्ट उसका 1-2 ड्राफ्ट कर चुका था. He wanted a final draft sort of. तो I and जीशान we sat for a month और हमने उसको streamline किया and वो फिर बनी. But unfortunately दोनों फिल्में आई और दोनों फिल्में चली गई. Not many people saw that. Did Because that affected you also? कहीं ना नहीं, ऐसा मतलब यू आर हैप्पी कि एटलीस्ट आपका फिल्म बन गया, हाँ. फिल्म तो बना, कम से कम बाहर आ गया, क्रेडिट आपको मिल गया. और मतलब फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो अक्सर लोग बोलते हैं जो होता है कि आपकी कहानी ले ली किसी ने, क्रेडिट नहीं दिया, वो सब नहीं किया. वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं. मैंने कभी उसके लिए ऐसा मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि मेरा क्रेडिट क्या दे रहे हो, अब क्या नहीं दे रहे. दे गेव मी प्रॉपर क्रेडिट इन बोथ द फिल्म्स. एंड बट बोथ फिल्म अनफॉर्चुनेटली नहीं चला. सो आई थॉट कि अभी क्या किया जाए, तो आई टुक अप अ जॉब इन, आई टुक अप राइटिंग इन टीवी. सो एक राइटर है दीपक वेंकटेश, उन्होंने लाल कप्तान सैफ अली खान का मूवी वो उन्होंने लिखा है. ही इज़ अ कन्नड़ा गाय, but working in Bombay for a long time. Same journey like me, IT worked. He worked for a long time in IT, then quit the job and started doing writing. So he was writing for TV because mostly TV is bread and butter for writer. तो वो भी TV में कर रहे थे. daily income. हाँ, वो आपको रेगुलर एक इनकम मिलता है. तो he said कि मैं उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया. And TV writing frankly was another experience. See, because I was not a trained writer. अनुराग saw कि हाँ ये I can write. Potential है. हाँ, so he called me to Bombay, I started writing. फिल्म भी बन गया, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, दैट दोज आई लर्न व्हाइल राइटिंग टीवी.
हाउ डू यू क्रिएट ड्रामा, एंड आई वुड गिव लाइक फुल क्रेडिट टू दीपक जिनके साथ मैं काम किया. I was kind of assisting him. He was writing screenplay, I was doing dialogue part. But the way he used to write the beat sheet. So in TV, what happens is you write a beat sheet, you go take it to the channel, you narrate it to them. Once they approve it, then you write dialogue. So आपको episode approve हो जाता है. So before that, I was writing like complete script from the scratch. पहले scene से with dialogue and everything. उसमें बहुत बार ये होता था कि आप halfway mark पे आके अटक जाते हो. आपको पता नहीं चलता कि यार वर्क कुछ तो है जो वर्क नहीं कर रहा, बट क्या वर्क नहीं कर रहा यू डोंट नो. बल्कि मेरे को लाइक आई मेट अ वेरी सीनियर डायरेक्टर फिल्म मेकर. उन्होंने मुझे बोला कि वन लाइन में तुम्हारी कहानी क्या है. एंड आई सेड, एंड दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद मेनी राइटर्स. हर कोई बोलता है कि यार मैंने पूरा 100 पेज का स्क्रिप्ट लिखा है, इसको मैं वन लाइन में कहानी सुनाने का क्या मतलब है. Was the point of one line. But I personally feel कि it is very important. Yeah, correct. एक लाइन में अगर आपने बता दिया और as an audience if I have approved it, Correct. then you can think of maybe writing. So वो चीज पहले नहीं समझ आता आपको. आपको लगता है कि मैं लिख रहा हूँ, ये है सीन लिख रहे हैं. तो वो एक चीज थी, वो मैंने टीवी में सीखी कि टीवी में हाउ दे थिंक ऑफ वन लाइन, दे राइट इट इन बीट शीट काइंड ऑफ. They don't write scene with dialogue. They write paragraph which is like describing the complete scene, start to end. Scene में ये हो रहा है, and वैसे 15 पैराग्राफ लिखते हैं, 3-4 पेज का आप एक बीट शीट बनाते हैं which you narrate to the channel. So that way of working I learned from while working in TV, and that helped me a lot then. Because उसके बाद जो मैंने फिल्में लिखी, so I followed the same template. I thought of one line, core idea क्या है. तो तब आपको क्लैरिटी मिलता है कि हाँ ये है. बाद में मैंने जोया अख्तर का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे थे कि वन लाइन इज सो इम्पोर्टेंट, एंड देन आई रियलाइज कि आई वाज अ फूल कि जो मैं सोचता था कि वन लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है. बट सो आफ्टर दैट, एवर सिंस दैट आई बीन फॉलोइंग दैट पैटर्न कि वन लाइन में आपका आइडिया क्या है, एंड देन हाउ टू फ्लैश दैट आइडिया आउट. तो उसमें आपका राइटिंग फिर बेटर होता है, बिकॉज देन यू नो एवरी सीन व्हाई यू आर राइटिंग दिस सीन, व्हाट इट इज गोइंग टू ऐड टू. And I also feel that it is also easier अगर आप किसी को नरेशन के लिए भी जा रहे हो ना यार, not everybody will have like 3 hours to sit with us and hear the narration, but अगर मैं उसको 3 मिनट में समझा सकती हूँ कि मैंने क्या कहानी लिखी है, so I think that also makes much more sense. मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है राइटिंग इज अबाउट आर्टिकुलेटिंग. इफ यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट इन वर्ड्स विच मीन्स यू आर अ राइटर. अगर आप अपने थॉट आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, आप ये बोलते हो कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप मतलब शायद आप नहीं, फिर अपने पे काम करना पड़ेगा. हाँ, यू गॉट टू पुट इट ऑन पेपर, आर्टिकुलेट इट. क्योंकि बहुत बार जैसे वन लाइन का भी जो है, बहुत बार ऐसा होता है आपको कहानी लिखते लिखते वन लाइन क्लियर होता है कि वन लाइन एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कहानी में. आपको एक आइडिया है, इंटरेस्टिंग आइडिया है, बट इंटरेस्ट वो एग्जैक्टली वन लाइन में क्या आप कहानी बोल रहे हो, दैट यू वाइल राइटिंग यू कई बार अंडरस्टैंड दैट. Also you mentioned about Anurag Kashyap, Gang of Wasseypur. तो अभी थोड़े दिन पहले I'm sure you must have also seen, so there is this interview of legendary जावेद साहब, जिसमें उनसे तो कोई तो क्वेश्चन पूछता है कि आजकल इतना गालियां हम क्यों लिख रहे हैं. To which he जावेद साहब being जावेद साहब, he replies in a very witty manner कि अगर आप खाना खा रहे हो और खाने में मसाले की कमी है तो मसाला कैसे पूरा होगा. तो गालियां आर लाइक चिलीज for your maybe a better write-up. तो his reply was that कि अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, तो उसमें चलो गालियां. बट ये भी है ना कि हर कोई गालियां रख के उसमें वसेपुर तो नहीं बनती ना. हाँ. तो वो तो नहीं हो सकता. मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए खाली चिलीज है, आपकी कहानी नहीं है. मतलब मुझे ये लगता है गालियों का मामले में लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ एक्टर थिंग. अगर एक्टर फ्लो में गाली दे रहा है डायलॉग में, तो इट शुड बी ओके. मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑन पेपर इफ यू आर राइटिंग गालीज जस्ट टू क्रिएट चिली वाला इफेक्ट, मसाला डालने के लिए, तो वो प्रॉब्लमैटिक है. फिर उसमें दिक्कत है. काम करेगा भी नहीं कि वो भी बहुत डिपेंड्स. हाँ, फिर तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपने डाल दी गाली, वो सब डाल रहे तो मैं भी डाल देता हूँ. OTT है. आई जनरली प्रेफर के गाली ना हो स्क्रिप्ट में. मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि अननेसेसरी गाली डाले अनलेस के तो डिफरेंट है. अनुराग कश्यप फिल्म्स आर लाइक वेरी डिफरेंट. हाँ, बट उनकी वो कहानियां जो बनाते हैं, मतलब अब वी कांट हैव गालियाज इन गुटरगू.
करेक्ट है ना, वो यंग एडल्ट है तो उसमें ऐसा नहीं है कि यंग एडल्ट लोग गालियां नहीं देते, बट वो उसमें फिट नहीं बैठता। सबलाइन होगी, ऐसा नहीं कि लाइक एवरी कैरेक्टर विल हैव अ डिफरेंट। करेक्ट, एक किसी लाइन में कुछ गाली हुआ तो वो ठीक है, बट यू कांट यूज गाली ऑल थ्रू। हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि दिस इज माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ये 100 आइडिया में से ये आइडिया है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, तो वो खुद से कॉल लेना, मतलब वो गट फीलिंग कैसे पता चलता है? पर्सनली मेरे को बहुत मुश्किल लगता है आइडिया जीरो डाउन कर पाना। तो यू सेइंग कि थोड़ा डायरेक्टर का एक वैलिडेशन जरूरी किसी है। का तो वैलिडेशन चाहिए कि किसी को आप आइडिया सुनाते हो तो वो सुन के आपको खुद भी सुनाते हुए आइडिया समझ आता है कि जो आइडिया आपने सोचा है वो कितना एक्साइटिंग है या कितना एक्साइटिंग नहीं है, तो वो खुद भी आपको समझ आता है। तो बट मेरे लिए पर्सनली मेरे को खुद जीरो डाउन करना अभी भी बहुत मुश्किल होता है कि मुझे, इफ यू हैव एन आइडिया एंड यू गिव इट टू मी एंड इफ दैट वन लाइन आई गेट द वन लाइन कि हाँ ये वन लाइन इसमें कहानी है, निकल सकता है, देन आई कैन राइट अ स्क्रीन प्ले। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि कुछ लिखो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू जीरो डाउन ऑन वन आइडिया कि व्हाट टू राइट। लाइक मतलब मोस्टली अभी तक जो रहा वो ये रहा कि रियल लाइफ से इंसिडेंसेस कुछ जो हुए। सो आई रोट अ फिल्म कॉल्ड अकेली। सो उसका अगेन दैट ऑल्सो हैज दिल्ली, मतलब मेरे फ्रेंड दिल्ली फ्रेंड्स वाला कनेक्शन। तो द फ्रेंड whom I mentioned, I met, who's a banker and I met him. So he knew, उनकी कज़न थी जो बॉम्बे में इंडस्ट्री में थे, वो कॉस्ट्यूम्स में काम करते थे। She knew a guy who wanted to be a director. So I met director of Akili via that cousin of him. So I met him and it was a regular meeting. कुछ इतना नहीं हुआ, but later on he said कि मैं भी, I want to direct something. If you have anything, bounce it to me. Let me know. So then he gave me कुछ चलता रहा, नहीं हुआ. Then he gave me an idea of this guy who's stuck in Southeast Asia in a palm oil factory and wants to get out of that. And वो try कर रहे हैं, but how he escaped the factory and वो सब. तो वो एक आइडिया था, बट आई सेड कि यार स्टेक्स उतना नहीं है पाम ऑयल फैक्ट्री। एंड आई हैव रेड एन आर्टिकल अबाउट दिस गाय फ्रॉम पंजाब हु आर वर्किंग इन सीरिया एंड who was among 40 people who got killed by terrorists, and but he survived the bullet wound and how he escaped Syria. So I gave him that story article to read. He read the article, he said it's very interesting. So हमने उस पे काम करना शुरू किया and we wrote the complete script with a male protagonist. क्योंकि मेल प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे आ रहा है, बट आफ्टर फिनिशिंग द स्क्रिप्ट हमको खुद ही लगा कि यार ये आइडिया, मतलब हैविंग अ हीरो इन दिस, finding a hero for this will be a very difficult task because nowhere he is doing anything heroic. He was just escaping Why would anybody be threat. interested in doing that? So we thought कि it will be difficult. So तब आइडिया है कि उसको फीमेल प्रोटैगनिस्ट कर दें तो कैसा होगा. Then we rewrote the script again with the female protagonist. With the same storyline, but again we have to change so many things for that. So then we wrote that, and then again pandemic happened. वो बीच में चीजें रुक गई. After pandemic got over, then उससे पहले before pandemic, Nusrat has read the script and she has said yes to it. She said कि I'll do it. Yeah, so she read it and she said yes to it. After pandemic, very graceful of her that she agreed to do the film. कितना time लगा for you to like write this down? In a month, I think. In a month, first draft in a month. Okay. But then we again changed it to female protagonist. So and then we got feedback from producers and वो सब रहा. How तो many drafts generally just like these kind of scripts require? 6-7 draft तो मतलब होता है. और ये कितना टाइम पीरियड, ये 1 महीने के टाइम पीरियड में, या दिस इज लाइक 6? आप एक ड्राफ्ट लॉक कर देते हो जो एक स्टार्ट टू एंड आपका एक ड्राफ्ट हो गया. देन यू कीप ऑन गेटिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल के ये इसमें ये सीन नहीं वर्क कर रहा, तो रीवर्क ऑन दैट सीन. तो वो आप रीवर्किंग फिर करते रहते हो उसमें. वो दिस कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ शूटिंग ओनली, कि जब तक शूटिंग शुरू नहीं होता तब तक ये चलता रहता है प्रोसेस. have an assistant या फिर you No, I do it. I work on it. Yeah. Okay. Because writing is not something you can outsource. मतलब you can't make anyone write like you. जो आप लिखते हो, जो दूसरा लिखता है वो दूसरा लिखेगा.
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब आप किसी और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आप उसमें करेक्शन आपको लगता है यार ये मतलब यू टेंड टू लुक एट इट एज अ राइटर कि ये सीन में ये डायलॉग में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आप फिर अपने हिसाब से करते हो. फॉर अ राइटर टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट समवन एल्स स्क्रिप्ट इज बिट डिफिकल्ट. सो आई मोस्टली टेंड टू आई गिव फीडबैक, बट उतना मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ कि मैं किसी और का पढ़ के, बिकॉज आई कांट जज समवन एल्स राइटिंग. इट्स नॉट माई फोर्टे. इट्स फॉर द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, लाइक जो भी है. इफ दे आर लाइकिंग इट, विच मीन्स हाँ it's in right space. Which medium like you enjoy the most? Because you've done OTT also, you've done films also, you've done drama, television also. So is there a particular medium कि यार ये लिखने में या पैसा किसमें ज़्यादा है? You know, most important part is money. And money matters. So how do you see that? See, film लिखना it's still ultimate goal of any writer. Having your film release in theater is something, but अब तो OTT पे फिल्में रिलीज होने लगी हैं, but still film is a different thing, different beast. Show is a different beast because आप episode है, you got to break down every episode. Every episode is a story in itself. So that is a different writing style. film में अलग writing style होता है. तो अल्टीमेट गोल तो देखो फिल्म ही होता है कि आपका नाम पोस्टर पे आना, फिल्म आपकी वो एक बॉम्बे आते ही 6 months हो गया था. आई थिंक एटलीस्ट फॉर यू वर लकी इनफ मे बी कि दैट थिंग. आयरॉनिकली फिल्म वैसी थी कि लाइक माय मॉम डैड व्हेन दे वेंट टू सी द फिल्म, तो द गाय द काउंटर सेट के सर एडल्ट फिल्म है. तो मेरे डैड ने बोला कि हाँ मेरे बेटे ने लिखी है. तो अभी वो अलग चीज़ थी. बट हाँ ठीक है, फिल्म मतलब OTT में इट्स अ डिफरेंट थिंग. OTT इज मोर चैलेंजिंग फॉर अ राइटर. फिल्म में एक बार आपको एक वन लाइन आइडिया आपने लॉक कर लिया तो आप कर देते हो. वो शो में एवरी एपिसोड नीड टू हैव इट्स वन लाइन आइडिया एंड फ्लैशिंग आउट द आइडिया. In OTT you work with a team, like there are mostly more than one writer involved, so you bounce the ideas, you work as a team. Writing wise there's nothing, no difference per se. Money wise is there, of course, I'm sure there's a Yeah, money is, but in OTT space if you're working for a premium platform, then you get paid very well. काफी different genres you have written already. Yeah, मतलब for me storytelling is storytelling. Genre से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स गुड लाइक इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट थिंग्स टू राइट, तो दैट एड्स टू द. Is there any like a particular genre which you prefer कि यार ये तो मैं ऐसे मतलब आँख बंद करके ही लिख सकता हूँ? I'm sure you can write anything because you have written so many good films already. Like slice of life is easier for me to write. Everything is slice of life. Even if Akeli is there, तो it's also slice of life. But it's a dark or more ग्रिटी साइड ऑफ लाइफ. बट जो भी आप कहानी में लिखते हो वो तो वही लिखते हो जो आप अपने आसपास जो लोग देखते हो. व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग तो पहले मैं यही सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर्स हैं तो मेरे आसपास कौन लोग हैं ऐसे जिनको मैं थोड़ा ले सकता हूँ, जिन कैरेक्टर से मैं ले सकता हूँ. आई थिंक राइटिंग का सभी राइटर्स ये करते हैं, अपने आसपास से चीज़ें उठाते हैं. But there is no like a strategy. It is more about your personally शायद मेरे साथ जो हो रहा है. Maybe I'm reading this. I've met this person, so you try to put that into words. हाँ, मतलब आप न्यूज़ में आप सुनते हो कोई कहानी, आप मतलब न्यूज़ में आपने कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा सुना, तो आप देखते हो कि अच्छा दिस आई कैन यूज इन माय स्टोरी. What do you think about AI? AI can give you a bouncing board, sort of, so to say. कि you put down some thoughts and it gives you something. कि हाँ ये है. But more than that, I don't think so. It can write. I mean, it cannot write emotions the way a writer can write. You write dialogues also, screenplay also, story also. So can you just like little breakdown for us so that our audience understands कि यार ये सब में क्या क्या difference है? स्टोरी तो एक जो कहानी है जो आपने 2 पेज में 3 पेज में आपने जो कहानी लिखा, फॉर मी लाइक आई ट्रीटेड लाइक कि वो आपका मैप है, रफ मैप. आपको पता है कि कहाँ जाने वाली है कहानी, ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा. और ये पिच में काम आएगा, ऑफ कोर्स पिच में आता है. एंड व्हाइल राइटिंग स्क्रीन पे देन यू स्टार्ट डेवलपिंग सीन्स कि ये सीन में ये मतलब सीन में क्या होगा. तो समटाइम इट हैपेंस कि यू राइट अ सीन एंड देन आपको लगता है यार ये कहानी तो इधर भी जा सकती है, इसमें ये भी हो सकता है. ऑल्दो आई वुड से दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज देन तो फिर आप भटकते रहोगे, आप ये भी करोगे ये भी करोगे. यू गॉट टू बी वेरी क्लियर कि कहानी का वन लाइन ये है तो मुझे अल्टीमेटली तो यहाँ लेके आना है.
स्टार्ट ये है, मिडिल ये होने वाला है, एंडिंग ये होने वाला है कहानी का, वो आपको क्लियर होना चाहिए. बट हाँ मतलब सीन में देन यू राइट सीन्स में आप फिर उसको डिटेल करके, सीन इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी इन दैट स्टोरी. तो that scene should have preferably have the start, middle and end. So there should be a conclusion to that scene or continuation to the next scene. But आप 2-3 सीन भी मिलाओ तो आपको ऐसा लगे कि आपने एक शॉर्ट फिल्म देखा, मतलब आपने ये खत्म हुआ. देन not in every like different direction नहीं लगना चाहिए. Correct, At least correct, it should feel like a part of Right. one story. सीन बाय सीन जोड़ते जाते हो और आपका स्क्रीन पे बन जाता है, फिर उसमें स्क्रीन पे क्रिएट होता है. In terms of money, do you think writers अभी भी बहुत पीछे है गेम में, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत आगे? नाउ तो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट. अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, अब तो बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है. तो इट्स वेरी क्लियर, यू गेट एन एग्रीमेंट, यू नो कितना आपको ट्रेन मतलब कितना पेमेंट किस पे मिलने वाला है, तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू. अभी वैसा नहीं है कि आपको आपने लिख दिया फिर आप वेट कर रहे हो कि मेरा पेमेंट कर दो, वो कर दो, तो वो सब तो होना बंद हो गया है. Yeah. What is the pay package you think people get in today's time? जनरली एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है कि आपकी फिल्म का बजट अगर 8 CR मतलब सर्टेन बजट में आपकी फिल्म है तो आपको इतना पेमेंट मिलता है. जो राइटर एसोसिएशन है बॉम्बे का, दे हैव दिस ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो, दे हैव दिस कि अगर आपकी फिल्म का बजट इतना है तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा. बट टू बी ऑनेस्ट, और लाइक यू सेड कि देयर आर एजेंसीज या मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग, तो वो सब वो लोग करते हैं. आई नेवर नेगोशिएट पेमेंट. जो मिलता है ले ले. या आई एम ये जब लड़ना तक नहीं पड़, but you are happy, no? हाँ मतलब मैं हैप्पी कि कम है. देखो ऐसा पैसा तो आपको हमेशा लगता है कम है यार, थोड़ा और मिल जाता तो बेटर था, वो तो फैक्ट है. बट ये कि हाँ ठीक है, इतना आपकी फिल्म बन रही है, मेरा तो बिलीव है कि आप अच्छा काम करते रहो तो पैसा तो मिल ही जाएगा. But how do you really define अच्छा काम? अच्छा काम मतलब एक फिल्म लिख लो, 2 फिल्म लिख लो. मतलब अच्छा काम ये कि आप हो जाए. हिट, How do देखो you हिट हो जाए फिर तो देन तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फिर तो आप अलग लीग में आप आ सकते हो कि आप इतना सर्टेन अमाउंट चार्ज कर सकते हो कि मैं इतना लूंगा बिकॉज माई फिल्म वॉज अ सक्सेस. But till the time like people are appreciating those who are making the film, they are appreciating your writing, and so then they will refer you to other people. You'll get called for other projects. तो आपका काम अच्छा आप करते रहो तो eventually and with each project you get paid more. आप अपना थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हो, 10-15% आप बढ़ाते हो, तो वो चलता रहता है. मतलब दैट वे इट गोज ऑन. सो ऐसा मतलब ऑब्वियसली अगर एक मेरा फिल्म हिट हो जाए then I could demand anything like whatever money I want, I can ask for that. You think you have reached that stage? No, ना भाई बहुत अभी तो वो that to मतलब you never know when that stage would come. Maybe with my next project, or maybe it takes another like 5 years to reach that stage. But again, like I never measure this success in terms of money, because अल्टीमेटली लाइक वही अगेन के काम ही करते रहो. काम अगर जब तक आप कर रहे हो, आपका काम बाहर आ रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी. पेमेंट आपको इतना मिल रहा है कि हाँ ठीक है, यू द लाइफ यू वांट टू लिव, यू आर लिविंग दैट लाइफ. हाँ मतलब आप घर नहीं ले पा रहे, वो अलग बात है, बट यू गॉट टू बी पेशेंट इन दैट सेंस कि आपको वेट तो करना पड़ेगा. Especially like somebody like you who's a writer who's in a completely different profession, different world, और वहाँ से यहाँ की I think ये journey this is quite commendable, because not like everybody will have this fair chance कि अनुराग कश्यप उसका स्क्रिप्ट पढ़े, आप सिलेक्ट हो, आगे आओ. Very true. So I think that is also a very good fortune that you have had. करेक्ट. लाइक जैसे अब अखिलेश के साथ भी मैंने लिखा, इट कुड हैव हैपेंड कि वो जाके बोलता कि मैंने लिखी है फिल्म प्रोड्यूसर को, तो वो तो तब भी हो जाता. बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. ही प्रॉपरली गिव मी प्रॉपर क्रेडिट एंड एवरीथिंग. बट मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम होता है मोस्टली लोगों के साथ. हाँ नहीं, बिकॉज अभी ईमेल पे आप भेजते हो, यू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, यू कैन शो, मतलब दिखा सकते हो, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है. एक जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो ये किया कि आपने कोई कहानी लिखी, आप प्रोड्यूसर पर गए, प्रोड्यूसर ने आपको बोला कि मैं साइन कर लेता हूँ आपको. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, विच आई वॉज नॉट वाइल साइनिंग फ्यू ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट. सो लाइक अ कपल ऑफ माई स्क्रिप्ट गॉट स्टक with producers because I signed the contract and तो आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसा? हाँ मैंने पढ़ा, बट इतने ध्यान से भी पढ़ा, बट एट दैट टाइम यू नीड मनी. आपको लगता है कि चलो ठीक है साइनिंग अमाउंट मिल रहा है, इतना ले लेते हैं और फिल्म तो बन जाएगी, वो हो जाएगा. तो कई बार ऐसा होता है कि थिंग्स डोंट पैन आउट दैट वे एंड देन यू आर स्टक.
तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप ऐसे फंस कोई जाते। प्रोजेक्ट है जो आपने लिखे हो, चल रहे थे, फिर बंद हो गया, फिर वो नहीं, चल रहा वाला तो नहीं कि जो चल रहा था, पर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने लिखी स्क्रिप्ट और जो बट बिकॉज किसी प्रोड्यूसर को दे दिया। यू कांट टेक इट बैक क्योंकि आपको पेमेंट मिल चुका है। प्रोड्यूसर भी ऐसे होते हैं कि वो फिर बोलते हैं कि आप, उन्होंने आपको साइनिंग 2 लाख दिया है, तो व्हेन यू आस्क फॉर योर स्क्रिप्ट 5 साल बाद, तो बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मैं आपकी स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा। ऐसा एक्चुअली में हुआ है? ये हुआ है ये मेरे हुआ है? ये हुआ है मेरे साथ कि आई बीन टोल्ड कि आप 10 लाख रुपए दे दो, वी स्पेंड सो मच टाइम एंड मनी ऑन योर स्क्रिप्ट फॉर पिचिंग इट, तो आप मुझे दे दो, तो आप दे दो तो हो जाएगा। बट अगेन अब मतलब वो बैड लक ही है। know that you have worked with Pocket FM. या So, you know, again, different mediums. So, you have tried, I think, almost every possible medium. with हमें Pocket राइटर तो राइटर है ना, राइटर तो कुछ भी लिख लेगा। FM. Yeah. मैं आई हैव रिटन फॉर कॉर्पोरेट एड्स ऑल्सो, मैंने एड भी लिखे हैं, तो एनी काइंड ऑफ राइटिंग तो कोई भी कर सकता है। मतलब अगर मुझे कोई स्टेज प्ले लिखने को बोले तो मैं वो भी लिख दूंगा, इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। So, for you as a writer, जब दूसरा कोई सुनता है इसका film is coming with this actor, so does your perception for that person changes? या ऑब्वियसली इट हैपन। मतलब अगर आपका फिल्म बड़ा है, कोई बड़ा नाम एसोसिएटेड है उससे, तो इट डज मेक अ डिफरेंस। लाइक विद गुटरगू, बिकॉज शिक्षा एंटरटेनमेंट इज इन्वॉल्व, गुनीत मोंगा इज देयर, नाम ही काफी है। सो right. उनकी वजह से आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी को बोलते हो कि मैंने वर्क फॉर शिक्षा, तो दे ट्रीट यू डिफरेंटली। So, Gunjan, what are your upcoming projects, you know, that you're working on? Currently, though, I'm working for a show for TVF. Other than that, there are many things which I'm writing. But writing तो होता है like गड्ढा खोदना, उसमें बिल्डिंग बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। Right, So right. कमीशन वर्क में वन एक तो गुटागू सीजन 3, Guttergoo season 3. Oh, very nice. and then for TVF. I think TVF for me is something which is very interesting because literally I've seen each and everything Yeah. of TVF. So I'm sure whatever project you're going to collaborate with them is going to be really, really interesting. So we'll wait for it. Thank you. So Gunjan, now we'll come to the rapid fire of our podcast. Already अपना podcast काफी ज़्यादा rapid fire रहा है with all your, you know, insightful answers that you've given us. So we'll start with just basic questions, but आपको खाली fast reply करना है. So that is it. So we'll start with the first question. So who's your favorite writer? Anurag Kashyap, Which is your favorite film? complete. Okay. Is any particular writer that you want to collaborate with? Anurag Kashyap. Yeah, Anurag Kashyap. I think he should definitely make a film together for sure. You should. Who's the last dial on your phone number? You'll have to check and tell us. If you know it, then it's okay. 3 last मेरी dial. वाइफ का नंबर है, एक वर्क रिलेटेड नंबर होगा, थर्ड मेरे को आई कांट रिकॉल, बट ये दो मुझे याद है। Okay. थर्ड शुड बी कैब कैब ड्राइवर है, राइट? अगर इससे बात हो रहा वो कैब ड्राइवर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। वैसे पहले आंसर कर दिया, बट लेट मी से लास्ट के लगे। माय वाइफ। इतना कोई सोच के क्यों होगा ऐसा हमारे भाई के बाद? Your favorite food? चिकन करी, होममेड चिकन, Your favorite location? पहाड़ों पे कहीं भी। Talking about your favorite city in India, which is your favorite city? चंडीगढ़। Okay, I think we have got good people behind the camera who belong to the same city. So thank you so much, Gunjan, for the rapid fire round. It was very interesting to have you on board. And also, I want to tell it to the audience that Gunjan was one of the first person जिसको मैंने ये podcast का deck भेजा था और जिसका reply बहुत ही honest था और एक line में था, ये सही है, मैं call करता हूँ, बनाते हैं. So, you know, thank you so much for being here with us, for giving us your time. Thank you. We wish you all the best for your future projects. Thank you. And we hope next time again we'll be having some interesting conversation with your new projects. And Thank you so much. for- Thank you. Thank you. Thank you, Abhilasha, for having me. Cut.